السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی پیشکش ہے جرنیل صحابہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کی اس پیشکش میں آپ ایک عظیم فاتح ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے حالات و واقعات سماعت فرمائیں گے، جن کو اسی دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں، جو اپنے وقت کے عظیم فاتح تھے، جنہوں نے رومیوں کو ناکوں چنے چبوائے، اپنے سے 6 گنا رومی فوج کا مقابلہ کیا۔ اسی سیڑھی میں آپ بیت المقدس کی فتح کا حیرت انگیز واقعہ بھی سنیں گے، اور 60,000 فوجیوں کے مقابلے میں صرف 60 مجاہدوں کا مقابلہ ہوتے ہوئے بھی سنیں گے۔ یہ واقعات اس قدر دلچسپ اور حقیقت پر مبنی ہیں کہ ایک بار آپ سننا شروع کریں گے تو درمیان میں اٹھ نہیں سکیں گے۔ اس پیشکش کو ڈرامائی انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ انداز محض سمجھانے اور سننے والوں کو ذہن نشین کرانے کے لیے اپنایا گیا ہے۔ ان لڑائیوں میں لاذقیہ کی لڑائی اس لحاظ سے خاص ہے کہ اس میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی اعلیٰ درجے کی جنگی قابلیت اور ذہانت سے فتح حاصل ہوئی۔ قیصر روم کے حکم سے اس شہر میں رومیوں نے بہت بڑی طاقت جمع کر رکھی تھی۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ان کے اجتماع کی خبر ملی تو آپ لشکر لے کر تیزی سے وہاں پہنچ گئے، اور رومیوں نے اس طرح شہر کے دروازے بند کر لیے جس طرح دمشق کے بند کیے تھے۔ مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن آس پاس کا علاقہ ایسا تھا کہ اس شہر کا محاصرہ زیادہ دن جاری نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ ان سب باتوں پر غور کرتے ہوئے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کو حکم دیا کہ وہ شہر سے کافی دور جا کر خندقیں کھود لیں، اور یہ کام ایسی احتیاط سے کریں کہ رومیوں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ یہ حکم پورا کیا گیا۔ جب کام مکمل ہو گیا تو دوسرا حکم یہ دیا کہ مجاہد بڑی بڑی ٹولیاں بنا کر لشکر سے نکلیں، اس طرح کہ رومی انہیں جاتے ہوئے دیکھیں۔ لشکروں سے نکل کر مجاہدین کی یہ ٹولیاں خندقوں میں چھپ جائیں، اور جب نعرہ تکبیر بلند ہو تو بہت تیزی سے نکل کر شہر پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ اس حکم پر بھی عمل کیا گیا۔ مسلمان بڑی بڑی ٹولیوں میں جانے لگے۔ رومیوں نے خیال کیا وہ محاصرہ اٹھا کر جا رہے ہیں۔ جب انہیں اپنے طور پر یہ اندازہ ہو گیا کہ مسلمانوں کا پورا لشکر محاصرہ اٹھا کر چلا گیا ہے تو شہر کے دروازے کھول دیے۔ شہر کے دروازے کھلتے ہی نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ مجاہدین خندقوں سے نکلے اور تیزی سے دوڑتے ہوئے آ کر شہر میں داخل ہو گئے۔ شہر پر نہایت آسانی سے قبضہ ہو گیا۔ رومیوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ بہت خوب، اسے کہتے ہیں حسن تدبیر۔ ان مجاہدین نے اللہ کے راستے میں لڑنے کے علاوہ اخلاق، ایمانداری اور شرافت کے بھی ایسے شاندار نمونے پیش کیے کہ پورے علاقے میں ان کی دھوم مچ گئی۔ مثلا ایک واقعہ سن لیں۔ جب دربار خلافت سے حکم ملا کہ سب مجاہد ایک جگہ جمع ہو جائیں، آپس میں مشورہ کر کے کسی کو سالار چن لیں اور ایک لشکر بن کر رومیوں کا مقابلہ کریں، تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اس وقت تک کئی شہر فتح کر چکے تھے۔ ان شہروں میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے جزیہ دینا منظور کیا تھا اور لڑائی کے بغیر مسلمانوں کو فاتح مان لیا تھا۔ جزیہ ایک ٹیکس ہے جو اسلامی سلطنت میں رہنے والے غیر مسلموں سے اس شرط کے ساتھ وصول کیا جاتا ہے کہ مسلمان ان کی حفاظت کریں گے۔ ان لوگوں نے جزیہ بھی ادا کر دیا تھا۔ خلیفۃ المسلمین کا حکم ملنے کے بعد مسلمانوں کو یہ علاقے چھوڑنے پڑے تو ان شہروں کے باشندوں کو جزیے کی ساری رقم لوٹا دی اور ان سے کہا، چونکہ اب ہم تمہاری حفاظت کی شرط پوری نہیں کر سکتے، اس لیے یہ رقمیں اپنے پاس رکھنے کا بھی ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ واہ سبحان اللہ! شاید کسی قوم اور تاریخ میں ایسی مثال نہ ملے۔ ہاں بالکل یہی بات ہے۔ ہمارے ان بزرگوں کی تو تمام زندگیاں ہی ایسی ہیں کہ ان کی مثال ہی نہیں ملتی۔ وہ صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور اس کے احکامات پر عمل کرتے تھے، اپنوں پرایوں سب سے اچھا سلوک کرتے تھے، لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیا کرتے تھے، زمین پر عاجزی سے چلتے تھے، کسی سے کوئی وعدہ کرتے تو اس کو پورا کرتے،
अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे, न किसी को उसका शरीक ठहराते थे, न उसके सिवा किसी को हाजत रवा समझते थे। वहम और तारीक ख्याली से दूर थे। वो हमेशा जिंदगी का रोशन पहलू देखते थे और ये रोशनी दूसरों तक पहुंचाते थे। वो कुशादा दिल और बुलंद हौसला थे। उनकी बहादुरी और दानाई उनके अच्छे अमाल ही का इनाम थी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब मुसलमानों को खलीफा की तरफ से ये हुक्म मिला कि वो सब मुजाहिद एक जगह जमा हो जाएं, तो उन्होंने इन शहरों का जिजिया वापस कर दिया, क्योंकि वहां से रुखसत हो जाने की वजह से वो उनकी हिफाजत नहीं कर सकते थे। उधर रूम के बादशाह हिरकल को पक्का यकीन था कि वो बहुत आसानी से इन चंद हजार मुजाहिदीन का खात्मा कर देगा जो शाम और फलस्तीन में दाखिल हुए हैं, और फिर इतनी ही आसानी से मदीने की इस्लामी सल्तनत का खात्मा कर देगा। लेकिन उसका अंदाजा बिल्कुल गलत साबित हुआ। उसे तो लेने के देने पड़ गए। उसने संभल संभल कर कई बार मुसलमानों का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं भी पांव न जमा सका। हर महाज पर उसे मुंह की खाना पड़ी। आखिरकार वो उस इलाके को जो सल्तनत रोमा का मशरकी हिस्सा कहलाता था, हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर कुस्तुनतीनिया की तरफ फरार हो गया। कुस्तुनतीनिया उसकी सल्तनत के मगरबी हिस्से का दारुल हुकूमत था। चलो छुट्टी हुई, यानी खस कम जहां पाक। हाँ, बिल्कुल। हिरकल के फरार के बाद सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु ने मुकद्दस शहर बैतुल मक़दिस फतह करने का इरादा किया। उस वक्त तक वो शाम के करीबन तमाम बड़े छोटे शहरों पर कब्जा कर चुके थे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु और लश्कर के दूसरे सालारों से मशवरा करके उन्होंने पहले अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु को बैतुल मक़दिस भेजा और फिर खुद भी वहां पहुंच गए। इस शहर को बचाने के लिए तो फिर ईसाइयों ने सरतोड़ कोशिश की होगी, क्योंकि ये शहर उनके लिए भी मुकद्दस है। यहूदी भी इसको मुकद्दस मानते हैं। उन्होंने भी ईसाइयों का साथ दिया होगा। ऐसा नहीं हुआ बच्चों, बल्कि ये कहना चाहिए कि सिरे से लड़ाई ही नहीं हुई। जी, भला ये कैसे मुमकिन है? मैं बताता हूँ। इस शहर की हिफाजत करने वाली रूमियों की फौज मुसलमानों की मुसलसल फतूहात की खबरें सुन सुनकर पहले ही हिम्मत हार चुकी थी। चुनाचे जैसे ही अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु वहां पहुंचे, शहर के मजहबी पेशवाओं यानी रहनुमाओं ने उनके पास पैगाम भेजा। वो पैगाम ये था, अगर मुसलमानों के खलीफा उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु खुद बैतुल मक़दस आए तो हम लड़े बगैर शहर की कुंजियां उनके हवाले कर देंगे। ये सुनकर अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमारा एक भी मुजाहिद न मारा जाए और भी कोई नुकसान न हो और शहर पर हमारा कब्जा भी हो जाए। फिर उन्होंने रूमियों का ये पैगाम उमर रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में भेज दिया। उमर रजी अल्लाह अन्हु को ये पैगाम मिला तो वो बैतुल मक़दिस जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था? जब मुसलमान आसानी से बैतुल मक़दिस को फतह कर सकते थे तो उन्हें जाने की क्या जरूरत थी? वो हुक्म भेज देते कि जंग करके शहर को फतह किया जाए। आजकल के बादशाह होते तो जरूर यही करते, यही हुक्म देते और खुद बैतुल मक़दिस हरगिज न जाते। लेकिन वो तो उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा थे जो की बुराइयों के खात्मे के लिए आए थे। इस पर जब उन्होंने महसूस किया कि उनके जाने से जंग टल रही है, बगैर खून खराबे के शहर पर मुसलमानों का कब्जा हो सकता है, तो उन्होंने फौरन कर लिया। आप बैतुल मक़दिस की तरफ रवाना हुए और इस तरह रवाना हुए कि अपने साथ सिर्फ अपने गुलाम को लेकर चले। आजकल के बादशाह कहीं जाते हैं तो अनगिनत हिफाजती इंतजामात किए जाते हैं, हिफाजती दस्ता साथ जाता है, लेकिन वो सिर्फ अपने एक गुलाम को लेकर चल पड़े। और इससे भी बढ़कर मजे की बात यह है कि उनके पास ऊंट भी एक ही था, दो ऊंट भी नहीं थे। लिहाजा वो बारी बारी ऊंट पर सवारी कर रहे थे। पहले उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अगर सवारी की तो फिर गुलाम ने सवारी की। गुलाम की बारी खत्म हुई तो उमर रजी अल्लाह अन्हु के ऊंट पर बैठने की बारी आई। इस तरह बारी बारी ऊंट की सवारी करते आखिर वो बैतुल मक़दिस के नजदीक पहुंच गए। पुरलुत्फ बात यह है कि जब बैतुल मक़दिस नजदीक आया तो उस वक्त ऊंट पर सवारी करने की बारी गुलाम की थी
और मुसलमानों के खलीफा ऊंट की महार पकड़े पैदल चले आ रहे थे। शहर का दरवाजा करीब आने पर गुलाम ने कहा भी, दरवाजा नजदीक आ चुका है, अब ऊंट पर आप सवार हो जाएं। इस पर उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि सुने, बारी आपकी है, लिहाजा ऊंट पर आप ही बैठे रहें। गुलाम ने कहा, वो लोग क्या सोचेंगे? उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कोई परवाह नहीं, हमें जो कुछ भी इज्जत मिली है इस्लाम की बदौलत मिली है, न कि सवारी या लिबास से। और फिर इसी हालत में मुसलमानों के दूसरे खलीफा उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु शहर के दरवाजे पर पहुंचे। वहां ईसाई और मुसलमानों की फौज के सिपह सालार अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु और दूसरे सालार मौजूद थे। चश्मे फलक ने ये नजारा देखा, आका ऊंट की महार पकड़े चले आ रहे हैं और गुलाम ऊंट पर सवार है। और ये नजारा देखते ही बैतुल मक़दिस के मजहबी पेशवाओं ने शहर की चाबियां उनके हवाले कर दी। सुना है उनकी किताबों में यही लिखा हुआ था कि जब मुसलमानों का खलीफा बैतुल मक़दिस के दरवाजे पर पहुंचेगा तो ऊंट की महार उसके हाथ में होगी और गुलाम ऊंट पर बैठा होगा। ये भी कहा जाता है कि उस वक्त उमर रजी अल्लाह अन्हु के जिस्म पर जो लिबास था उसमें पैबंद लगे हुए थे। दरवाजा नजदीक आने पर गुलाम ने यह भी कहा था कि आप लिबास तब्दील कर लें। आपने ये भी पसंद नहीं फरमाया था। इस तरह बैतुल मक़दिस खून का एक कतरा बहाए बगैर फतह हो गया, मुसलमानों का उस पर कब्जा हो गया। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु को इस पूरे इलाके का वाली यानी गवर्नर मुकर्रर फरमाया और खुद मदीने लौट गए। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु करीबन 1 बरस तक उस इलाके के हुक्मरान रहे। फिर 18 हिजरी में उनका इंतकाल हो गया। उनकी वफात ताउन की बीमारी से हुई। आप उस वक्त अमूस के मकाम पर थे। वहां ये वबाई मरज फैल गया। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें वहां से कहीं और मुंतकिल होने का मशवरा दिया, लेकिन आप वहीं रहे और फरमाया, मौत वक्त से पहले नहीं आ सकती। इससे साबित हुआ वो ईमान के बहुत ऊंचे दर्जे पर फाइज थे। उनकी औलाद की कोई तफसील चाचा जान? हाँ, उनके 2 बेटे थे। एक का नाम यजीद और दूसरे का उमैर था। ये दोनों लावलद फौत हुए और यूं अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु की नस्ल आगे नहीं चली। लेकिन असल चीज तो उनके अच्छे आमाल थे, जिनका सवाब कयामत तक उन्हें मिलता रहेगा। बेशक। और ये बात भी अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि इंसान का असल काम नेकी के रास्ते पर चलना और बुराइयों से बचना है। ऐसा करने वाले दीन और दुनिया की नेमतें खूब हासिल करते हैं। उनके लिए कामयाबियों के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। सैयदना अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु और हमारे दूसरे बुजुर्गों को इसी रास्ते पर चलकर शानदार कामयाबियां हासिल हुई। वो अजीम जर्नैल और अजीम फातिह बने। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें दुनिया में ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की अजीम तरीन खुशखबरी सुनाई। और बच्चों, मेरा ख्याल है अब आपको यकीन आ गया होगा कि मुसलमानों के लिए अपने से 5, 6 या 10 गुना बड़ी ताकत का मुकाबला करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। शर्त यह है कि ईमान का। आपने हमें बहुत बसीरत अफरोज वाकयात सुनाए, बहुत काम की बातें बताई। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब मैं इजाजत चाहता हूँ।